Hello students, welcome back to the another chapter of neurology. I am Dr. Sumit Kumar, Assistant Professor Medicine, Government Medical College, Bettiah. Today we are here to discuss the central nervous system infections. So as we all know, central nervous system infections are very common and very dangerous too. So we will have to very promptly diagnose it and treat it accordingly. So what are the main causes of central nervous system infections? It includes meningitis, it includes encephalitis, it includes brain abscess, and fourth is neurocystic sarcosis. So what is meningitis? That is inflammation of the meninges. And what is encephalitis? That is inflammation of the brain parenchyma. And what is brain abscess? That is necrosis of the brain parenchyma with infection. And neurocystic sarcosis, when the larvae of the Taenia solium reaches the brain and becomes a cyst. So that is called neurocystic sarcosis. So we will discuss now about meningitis. So as we have discussed, it is an inflammation of meninges. So obviously there will be signs of meningitis, that is meningeal irritation. What are they? They are the Kernig sign, the Brudzinski sign, and the Kernig sign. So we will discuss in the clinical cases, clinical classes, how to demonstrate it, but you will have to know these are positive. So what are the causes of meningitis? The most common causes of meningitis and dangerous causes of meningitis, which need immediate therapy without looking for diagnosis or lumbar puncture, is the bacterial meningitis. The other causes are tubercular, fungal, viral, and medications. Some medications like chlorotrimazole. So these are very important causes of aseptic meningitis. Aseptic meningitis is when we don't get a positive bacterial culture. It may be viral or it may be due to drugs. So now discuss about the common causes of meningitis. What are the common causes of meningitis? For children you will read in pediatrics. In adults we can discuss the four common causes are 1, 2, 3, 4 are PMSI. So P for pneumococcal, M for meningococcal, S for streptococcus, and I for influenza. So the causes are S pneumonia, streptococcus pneumoniae, which is known as pneumococcus. Second one is Neisseria meningitis, meningococcus. Third is group B streptococci, and fourth is H influenza. And in elderly and immunocompromised, we will have to remember the causative organism Listeria, and we will have to add antibiotic according to that. So and healthcare associated, like किसी को न्यूरोसर्जरी हुई है या किसी को ब्रेन में इंजरी है, so इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज स्टेफ ऑरियस, कॉन्स मीन्स कॉगलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलस. सो दीज आर हम लोग को जानना है फॉर मान लीजिए किसी की शंटिंग हुई है उसके बाद इसको इन्फेक्शन हुआ. एंड असेप्टिक मेनिंजाइटिस हम लोग बता चुके हैं जिसमें बैक्टीरियल कल्चर नेगेटिव रहता है. इट इज यूजुअली माइल्डर एंड प्रीसीड्स अ upper respiratory tract infection like meningitis or tonsillitis. इसका मेन कॉज होता है एंट्रोवायरस है, जिसका ट्रीटमेंट हम लोग सपोर्टिव करेंगे आर्गोवायरस है, एंड इट मे बी कॉज बाय ड्रग्स लाइक एनसेड्स एंड chlorotrimazole. एंड व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस? कोई भी मरीज अगर हाई ग्रेड फीवर के साथ, ऑल्टर कॉन्शियसनेस के साथ एंड नेक साइंस के साथ आता है तो आपको मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करना है. इट मे बी मेनिंजिज्म आल्सो, जो हम लोग क्लिनिकल क्लास में करेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेनिंजिज्म एंड मेनिंजाइटिस. एंड मेनिंजाइटिस में हम लोग को ये देखना है. सो द ट्रायड इज फीवर, नेक रिजिडिटी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, स्पेशली अगर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में आया है तो. डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैसे करना है? सो इसके लिए जो मेन हम लोग के पास टूल है दैट इज लंबर पंक्चर. सो लंबर पंक्चर हम लोग करते हैं फॉर CSF एनालिसिस. एंड CSF एनालिसिस में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपनिंग प्रेशर. ओपनिंग प्रेशर 180
ज़्यादा है या कम है। फिर हम लोग देखते हैं अपीयरेंस, उस हेजी है, क्लियर है, टर्बिड है, या कॉबवेब प्रेजेंट और नॉट। एंड CSF बायोकेमिस्ट्री में हम लोग शुगर एंड प्रोटीन देखते हैं। CSF साइटोलॉजी में TLC देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हम लोग देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड देन हम लोग ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर करते हैं एंड ADA करते हैं, एडिनोसिन डीएमएनए टेस्ट, जो कि अगर CSF में 10 से ज्यादा है अगर उसका वैल्यू, देन इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एंड ट्रीटमेंट इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ CSF कैसा कैसा दिखेगा, बिकॉज इसके पर आधारित हम लोगों को चार्ट्स मिलेंगे जो कि हम लोगों को एग्जाम में दिखलाने। प्लीज कम हियर। एंड सो वी आर हियर विद वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ मेडिकल थेरेपेटिक्स, द 75th anniversary edition, and on page 457 typical CSF fluids in meningitis. So these are very important because इस पे हम लोग को एग्जाम्स में चार्ट्स मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स का रहेंगे, और फोकस कर सकते हो तो कर दीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दीज आर नॉर्मल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड वायरल मेनिंजाइटिस में हम लोगों को कैसा कैसा सिम्टम्स मिलेगा। ओपनिंग प्रेशर मिलीमीटर वाटर लेस देन 180 नॉर्मली रहता है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, बैक्टीरियल में, ट्यूबरकुलर में भी इंक्रीज मिलेगा। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में डबल इंक्रीज मिलेगा, बहुत ज्यादा, अगर किसी को फोर्स में बहुत ज्यादा आ रहा है तो दैट इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। एंड वायरल मेनिंजाइटिस में भी बढ़ा हुआ मिलेगा। व्हाइट सेल्स पर माइक्रोलीटर, जिसमें 0 to 5 रहेगा नॉर्मली। नॉर्मल पहले हम लोग देख लेते हैं 0 to 5, ग्लूकोज 50 to 75 रहता है, या 2/3 ऑफ द नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू इन द सीरम। लाइक मान लो किसी को डायबिटीज है, अगर उसको 300 है इन ब्लड शुगर, तो उसके लिए नॉर्मल ब्लड CSF ग्लूकोज विल बी अराउंड 200। एंड प्रोटीन 15 से 40 एंड लैब डायग्नोसिस नन, इसमें हम लोग जानेंगे। तो इन व्हाइट सेल्स 100 to 5000 न्यूट्रोफिल्स रहेगा इन बैक्टीरियल। ट्यूबरकुलर में 50 to 300 लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट रहेगा। इसमें प्रोटीन, इस ग्लूकोज इसमें कम रहेगा, लेस देन 40 लेस देन 45। और इसमें प्रोटीन 100 to 500, 50 to 300। इसमें ग्राम स्टेन एंड कल्चर विल बी पॉजिटिव। इसमें AFB स्मीयर एंड कल्चर एंड PCR फॉर माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस विल बी पॉजिटिव। Cryptococcal meningitis we have discussed. There will be increase in CSF pressure very much, 200 to 500 lymphocytes, less than 40 glucose, greater than 45 protein, and cryptococcal antigens, India ink stain and fungal culture will be positive. And viral meningitis tend to ये सब cryptococcal immunocompromised में ज़्यादा मिलता है, like HIV patient, ठीक है ना। And viral meningitis 10 to 1000 lymphocytes एंड ग्लूकोज विल बी नॉर्मल। ये जान जाओ कि इसमें ग्लूकोज नहीं घटता है, क्योंकि इतना वायरस ग्लूकोज को कंजम्पशन नहीं करता है, 50 to 100 रहता है। वायरस स्पेसिफिक PCR हम लोग को करना है। पॉज करो। नाउ ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। देखो, अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आपके पास आता है तो तुम इसके लिए वेट नहीं करोगे कि तुम इसका CSF निकालोगे, CSF का तुम रिजल्ट का वेट करोगे, तब तक मरीज को बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको एम्पेरिकल IV एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसको हमेशा याद रखना, इसको एम्पेरिकली हम लोग IV एंटीबायोटिक्स देना। इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सन 2 ग्राम, जो नॉर्मल डोज 1 ग्राम होता है, उसका डबल डोज 2 ग्राम IV PD प्लस इंजेक्शन वैंकोमाइसिन। इट इज 20 मिलीग्राम पर kg IV PD। ये दोनों मिला करके हम लोग को एम्पेरिकली देना। इट इज फॉर 2 to 50 years old। लेस देन 2 years old पीडियाट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि उसके लिए स्पेसिफिक हम लोग को जानना है। एंड ग्रेटर देन 50 years में हम लोगों को लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस कवर करना है। तो इसके अलावा हम लोग एम्पिसिलिन ऐड करेंगे 2 ग्राम IV 4 आवर्स। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है तो इसमें वैंकोमाइसिन प्लस एम्पिसिलिन एंड सेफेपाइन प्लस सेफेपाइन और मेरोपेनम हम लोग ऐड करना है, या तो वैक या वैम, दैट इज वैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन एंड सेफेपाइन, और वैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन और मेरोपेनम, दोनों 2 ग्राम IV TDS। एंड नाउ अगर न्यूरोसर्जरी कॉम्प्लिकेशन, शंट लगने का नाम यह है, ट्रॉमा के बाद ऐसा हुआ, इसमें वैंकोमाइसिन एंड सेप्टाकिडीन, या वी कैन आल्सो ऐड सेफेपाइन।
एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में डेक्सामेथासोन जो डेक्सोना नाम से आता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि अगर खासकर अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में, इससे आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम लोग को जब तक अगर कल्चर रिपोर्ट में कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया जैसे मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजोकोकस आ गया तो कोई इसको विड्रॉ कर देंगे, नहीं तो इसको पहला 4 दिन के लिए हम लोग को डेक्सामेथासोन 0.15 मिलीग्राम पर केजी 6 आवर डेज को देना है। अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो इस सब के अलावा हम लोग को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देना है। वो ड्रग्स रेजिम हम लोग जानते हैं, और माइल्ड सीनस मेनिंजाइटिस में लंबा देते हैं, 1 साल से ऊपर ही हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं। अगर वायरल है तो अगर वायरल में HSV है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, जो कि कॉमनली एनकेफेलाइटिस कराता है, ब्रेन का इन्फेक्शन कराता है, मेनिंजाइटिस में अगर इसका निकल गया है तो इसमें हम लोगों को आसाइक्लोविर 10 मिलीग्राम पर केजी IV TDS को देना है। लेकिन अगर मान लो और कोई एंट्रोवायरस का जिस पॉजिटिव आता है, इसका मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सो हैविंग सेड दैट, अब हम लोग आते हैं एनकेफेलाइटिस। एनकेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा, और इसके लिए हम लोग अभी पढ़े हैं HSV1 इज द मोस्ट कॉमन वायरस। इसके अलावा अदर आर्गो वायरस लाइक वेस्ट नाइल फीवर, एंट्रोवायरस, हर्पिस वायरस, रेबी, ये सब एनकेफेलाइटिस का बहुत कॉमन कारण होता है। लेकिन अगर नॉन वायरल कॉजेज हम लोग जाने तो ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, फंगल माइकोप्लाज्मा एंड टिक बॉर्न डिजीज, ये सब नॉन वायरल कॉजेज ऑफ एनकेफेलाइटिस है। एंड देयर में बी सम नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ एनकेफेलाइटिस, इसमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, वैस्कुलाइटिस, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, और जो एक हम लोग बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन है, मान लो किसी को लाइव वैक्सीन लाइक पोलियो दिया गया और वो ब्रेन के थ्रू ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला गया, एंड इट विल कॉज अक्यूट डिसेमिनेटेड एनकेफेलाइटिस, जिसमें आफ्टर इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन के बाद पूरा ब्रेन में इन्फेक्शन फैल जाता है। ये बहुत अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर इम्यूनाइजेशन। क्लिनिकल फीचर्स में देयर विल बी फीवर एंड अल्टर मेंटल स्टेटस, एंड बट इसमें कर्निक्स या ब्रुजस्की या नेग्रिविटी अनकॉमन ही मिलती है, नहीं मिलती है। एंड देयर विल बी न्यूरोलॉजिकल साइंस लाइक पर्सनालिटी चेंजेस और सीजर्स, जो कि एनकेफेलाइटिस का ट्रेडमार्क है। इसके लिए भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं बाय CSF या MRI मोस्ट सेंसिटिव होता है, खासकर जो HSV एनकेफेलाइटिस होता है उसमें जो टेम्पोरल लोब एनहांसमेंट मिलता है। टेम्पोरल लोब में देयर विल बी टाइम एनहांसमेंट, सो ये हम लोग इससे कंफर्म करते हैं दैट इज HSV एनकेफेलाइटिस। ट्रीटमेंट हम लोग बताया एसाइक्लोविर फॉर HSV एनकेफेलाइटिस 10 मिलीग्राम पर केजी IV TDS। नाउ अबाउट ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस मींस ब्रेन का टिश्यू नेक्रोसिस हो करके वहां पर एब्सेस बन गया। इट इज मेनली बैक्टीरिया और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर फीवर विथ हेडेक, एंड काफी ज्यादा उसको सिम्टम्स हैं। ये आमतौर पे किसी फोकस कंटामिनेटेड फोकस लाइक फेरिंजाइटिस या डेंटल या मास्टोइडिस, जिससे मास्टोइड से डेंटल से या फेरिंज से जाकर के ब्रेन में स्प्रेड किया जाता है, या कोई सेप्टिक इम्बोलस वहां पे जाकर लॉन्च करता है, लाइक ट्रॉमा सर्जरी में या इंडोकार्डाइटिस है वहां से कोई किया हुआ है। इसका जो फ्लोरा होता है दैट इज मेनली पॉलीमाइक्रोबियल, एंड अगर HIV रहा तो इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस हम लोग सोच रहा है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में फंगल या नोकार्डियल या ट्यूबरकुलोसिस हम लोग को जानना है। एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस हम लोग बहुत जानते हैं। इसके डायग्नोसिस MRI या कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT स्कैन में हम लोग रिंग इनहांस लीजन करेंगे। मेरे पास CT स्कैन से जो ब्रेन एब्सेस है जो हम लोग क्लिनिकल क्लासेस करेंगे, आई विल शो देम। एंड इसका ट्रीटमेंट वही है, मेट्रोनिडाजोल विद सेफ्ट्राइक्सन विद वैंकोमाइसिन। सो अब इसका सर्जरी करके उसको हटाना है, एंड अगर उसके साथ हम लोग को कुछ कल्चर में मिलता है तो उसके अनुसार हम लोग को एम्पेरिकल बंद करके फिर स्पेसिफिक करना है। नाउ द लास्ट वन, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। देयर इज अ ऑर्गन कॉल्ड टीनिया सोलिया जो कि बोवाइन के थ्रू पेट में इन्फेक्शन करता है। अगर इसका एग से लार्वा बना, लार्वा से डिसेमिनेशन टू ब्रेन और वहां पे जाके सिस्टिक फॉर्म में मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड न्यूरो ब्रेन सिस्टिक सर्कोसिस हम लोग को वहां पर। ये बहुत ही
बीमारी है जिसका सीजर्स बहुत कॉमन मिलता है. एक लेंडर पेस्ट एक टेनिस स्टाफ है, उनको ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ये आमतौर पे या तो बीफ खाने पे होता है या कोई और कारण से भी हो सकता है. लाइक अगर हम लोग साफ सुथरा वेजिटेबल्स नहीं खाएं या पत्ते नहीं खाएं तो उस पर भी एग हो सकता है जिससे हम लोग कंटामिनेटेड हो सकते हैं. तो इसका ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीकन्वल्सेंट देते हैं एंड अल्बेंडाजोल एंड विथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट. इसमें स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं इन इनिशियल फेज और लास्ट में सब सर्जरी करते हैं. So in the nutshell, CNS infections are very important and very dangerous complications. So it should be treated promptly without waiting for the investigations. And पहले empirical start करना है and जैसे जैसे reports आएंगे हमारे पास हम लोग उसके अनुसार specific एंटीबायोटिक्स कर देंगे. And इसके लिए CSF एनालिसिस से हम लोग पता करते हैं. माइंड इट बैक्टीरियल, फंगल, वायरल या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस क्लिनिकली डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है. तो CSF एनालिसिस है मस्ट. इसके लिए हम लोग को अच्छे से CSF निकाल करके विदाउट ट्रॉमा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. सो दैट्स इट फॉर नाउ. होप अगर कुछ भी आप लोग को दिक्कत हो तो सेंड मी एट माई email, that is Tarun Sumit, TARUN Tarun SUMIT Tarun Sumit @gmail.com. Okay, bye.